زندگی میں جو لرننگ کی تھی، جو نالج آیا سندھ میں گراس روٹ پہ، سوشل سیکٹر میں، ہیلتھ میں، پھر فیڈرل لیول پہ، پھر اسپیشل ایجوکیشن میں، اس کو جیسے چیف سیکرٹری جب میں گلگت بلتستان میں گیا تو being head of the civil service, I had lot of space to innovate and to help people. ہم نے کوڈنگ فیلوز اور اے آئی اور چیس فیلوز کو ہائر کر رہے ہیں جو اگلے 4 ہفتے میں ہائر ہو جائیں گے. تقریباً 200 اسکولوں میں پلیس ہوں گے گریڈ 1 to 5 میں. بیسک کوڈنگ اور بیسک انڈرسٹینڈنگ آف اے آئی، جس کو آپ بات کر رہے تھے کہ اے آئی کو اس طرح یوز کرے کہ نیکسٹ کریکولم کو وہ ایکسیس کرنے اور یوز کرنے کے وہ عادی ہو سکے. وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے نیشنل میتھس اولمپیاڈ. وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے اسٹیمپ اولمپیاڈ اکتوبر میں. پھر پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے پورے اسلام آباد میں سمر فیسٹا سمر کیمپس کیے ہیں 50 ڈفرنٹ تھیمیٹک ایریاز، فرام ٹیک بوٹ کیمپس ٹو چیس ٹو مائنڈ گیمس ٹو یوگا ٹو آرکیٹیکچر کیلیگرافی، یو نیم اینی تھنگ، پورے بچے یہاں انگیج رہے. اب یہ اے آئی کا جو دور ہے، میری خواہش ہے بہت کہ یہ بچوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے اور یہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے بھی پیچھے رہ جائیں. اور میں اس میں آپ سے مدد کا بھی درخواست گار ہوں گا، اور انشاءاللہ. آپ جہاں بھی اس کو استعمال کر سکیں وہ بھی درخواست گار ہوں گا. تو ہم نے ٹارگیٹ یہ بنایا ہے کہ 5th گریڈ میں ہم بچے کو کمپیوٹر سیوی اتنا کرتے ہیں، انٹرنیٹ سیوی اتنا کرتے ہیں کہ وہ 6th گریڈ میں جا کے $100 a month کمانا شروع کر دے. السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں بہت خوش ہوں کہ میرے ساتھ پاکستان کے چیف سیکرٹری آف ایجوکیشن ہیں، اور اس سے پہلے یہ چیف سیکرٹری پروونس کے رہ چکے ہیں گلگت بلتستان کے. بہت ہی ہمبل سویٹ انسان ہیں، ان کی بہت تعریفیں میں نے دوسروں سے سنی ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اپنے منہ زیادہ نہیں بولتے یہ، تو میں نے سوچا کہ ان سے گزارش کروں کہ آج آپ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لیں، تاکہ آپ کے منہ سے بھی تھوڑا سا ڈائریکٹلی فرام دا ہارسز ماؤتھ تھوڑی سی چیزیں آ جائیں، انفارمیشن آ جائے. تو بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کا محی الدین بھائی ٹائم دینے کے لیے. یو ار اے بزی مین. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو لرن مور اباؤٹ کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کیا کرتے تھے، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اب یہ جو آپ نے گوگل کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اتنا خوبصورت اسکول بنایا ہے پاکستان کا، کیا دنیا کے خوبصورت ترین اسکولوں میں وہ اب شامل ہو گیا ہے، پرائیویٹ گورنمنٹ اسکولوں میں. تو کنگریچولیشنز اینڈ تھینک یو فار دیٹ آر ان آرڈر. تو پلیز اپنے بارے میں بتائیے، اور آئی وڈ لو کہ اور لوگ بھی پھر آپ سے سیکھ سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می جی، بہت شکریہ. بیسیکلی جی میرا اوریجنلی جو میرا کیریئر تھا وہ انجینئرنگ کا ہے. تو میں آپ کے شہر کراچی میں کچھ 1-1.5 سال داؤد انجینئرنگ میں نے پڑھا. اس کے بعد آئی وینٹ بیک، پھر یو ٹی ٹیکسلا سے میں نے کمپلیٹ کیا الیکٹریکل انجینئرنگ 4 سال کی. پھر میں نے 1994 میں سول سروس کا ایگزام دیا اور 1995 میں سول سروس جوائن کی، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس. میرے پہلے 4.5 سال سندھ میں گزرے. I was AC حیدرآباد، لڑکانہ، سکر، میرپور کا. Then I came back to اسلام آباد. یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں کچھ منسٹریز میں رہا. Then I went abroad on a scholarship. دو ایک اسکالرشپ پہ میں نے ڈیولپمنٹ اور لا میں ڈگریز دی. Then I came back. پھر میں ارتھکویک آیا تھا 2006 کا، اس میں بہت بڑی اتھارٹی بنی تھی، ارتھکویک ریکنسٹرکشن اتھارٹی. اس میں میں نے 1.5-2 سال کام کیا. پھر میں نے کچھ عرصہ اسکاؤنٹمنٹ پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ایک گورننس کا پروجیکٹ پہ کام کیا. دین آئی وینٹ ٹو پنجاب. وہاں پر میں مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن رہا فار 1.25 to 2 years. پھر میں سیکٹری انفارمیشن رہا، سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن رہا. پھر فیڈرل گورنمنٹ آیا، پرائم منسٹر آفس میں جوائنٹ سیکرٹری رہا. پھر میں ڈائریکٹر جنرل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پنجاب رہا. پھر میں واپس آیا، پھر میں ایڈیشنل سیکرٹری منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن رہا 2 سال. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو گلگت بلتستان ایز چیف سیکرٹری. وہاں سے واپس آیا ہوں، پہلے اسپیشل سیکرٹری اور اب سیکرٹری فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کا ہوں. تو یہ میں نے آپ کو مختصر ٹائم پہ آپ کو ایجوکیشن اور پروفیشنل کیریئر کی ایک چھوٹی سی روداد سنائی ہے. اور ان دا مین وائل زندگی میں جو لرننگ کی تھی، جو نالج آیا سندھ میں گراس روٹ پہ، سوشل سیکٹر میں، ہیلتھ میں،
फिर फेडरल लेवल पे, फिर स्पेशल एजुकेशन में, उसको जैसे चीफ सेक्रेटरी जब मैं गिलगित बल्तिस्तान में गया, तो बीइंग हेड ऑफ द सिविल सर्विस, आई हैड लॉट ऑफ स्पेस टू इनोवेट एंड टू हेल्प पीपल। तो वहां मैं पहली दफा मैंने, आपने खुद बताया, स्कूल मील्स प्रोग्राम का स्टार्ट किया। 82 स्कूलों में किया विद द हेल्प ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अल्लाह वाला ट्रस्ट। उसका फायदा क्या हुआ? कई स्कूलों में 25% एनरोलमेंट बढ़ी, कईयों में 100 बढ़ी, कई में 50%। तो द एनरोलमेंट वेंट अप, अटेंडेंस वेंट अप फ्रॉम 60% टू 95%, रिटेंशन 100% हो गई, ड्रॉप आउट जीरो हो गया, क्वालिटी लर्निंग में इजाफा हुआ। उसके साथ हमने मैंडेटरी आई स्क्रीनिंग शुरू कर दी, बच्चों को जो शॉर्ट साइटेड थे फ्री क्लासेस दे दिए। एक हेल्थ की इंटरवेंशन से आपने एजुकेशन के 5 ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर दिए। उसके बाद वहां मैंने देखा रिमोट एरियाज हैं, कोविड के लॉसेस से लर्निंग, तो मैंने वहां पर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, लेवरेज करते हुए, ऑफलाइन जो लर्निंग कंटेंट था उसको इंट्रोड्यूस किया थ्रू स्मार्ट स्कूल। तो हर हायर सेकेंडरी स्कूल को मैंने स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट किया विद एक्टिव एलएमएस सिस्टम, ताकि बच्चों को वीडियो एडिट मटेरियल थ्रू एलएमएस एक्सेस हो सके, क्योंकि टीचर्स की वहाँ शॉर्टेज थी। अच्छा, वहाँ क्रोम बुक्स गूगल की में लेकर आया, और उसका फायदा ये हुआ कि वो उनकी 8-8 9-9 घंटे की बैटरी लाइफ थी। बहुत कम लोगों को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान नेशनल ग्रिड पे नहीं है, तो इसलिए वहाँ 18-18 20-20 घंटे पावर आउटेजेस होती हैं। तो ये सोल्यूशन ने बड़ा हेल्प किया। फिर उसी स्मार्ट स्कूल्स को हम एक्सटेंड करते गए, और जब तक मैं पोस्टेड रहा तकरीबन 250 स्कूल मजीद उसमें एडअप हो गए। फिर वहां पे हमने स्कूलों की इन्वायरमेंट को री इन्विग्रेट किया, कलरफुल किया, नए फर्नीचर लेकर आए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि बच्चों को स्कूल एक खूबसूरत जगह लगे जहां पर वो जाके काम कर सके। बच्चों के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराई। अच्छा, फिर वहां पर मैंने एक इनोवेशन की कि मैंने थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए टेक फेलोज का कॉन्सेप्ट लाया। टेक फेलोज मीन्स यंग ग्रेजुएट्स who are trained in teaching computer, STEM and entrepreneurship. Entrepreneurship का हमने करिकुलम पहली दफा पाकिस्तान में डिजाइन किया, और वहां इनको ट्रेन कराया, और 200 स्कूलों में इनको प्लेस किया पहले साल। नेक्स्ट ईयर वो मजीद 200 स्कूलों में गए। फिर अपने आने से पहले मैंने वहां एक और बड़ा प्रोग्राम एजुकेशन फेलो का लाया, कि बजाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने की और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लाने के, अगेन यू गो फॉर अ टॉप नॉच सर्विस प्रोवाइडर। तो उसमें हमने एडवर्टाइज किया, तो आगा खान यूनिवर्सिटी, लम्स और नॉलेज प्लेटफॉर्म, 3 बहुत बड़े ग्रुप्स ने मिलकर कंसोर्शियम बनाया, और 1200 टीचर इंशाल्लाह अगले 2 महीने में अब डिप्लॉय हो रहे हैं, जो कि लोकली रिक्रूटेड होंगे बट ट्रेन्ड बाय टॉप लेवल सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस को थर्ड पार्टी वैलिडेट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। दैट वाज अ गुड सोल्यूशन। फिर वहां पे हमने कैरियर एक्सपोज कराई, ताकि बच्चों को एक्सपोज किया जाए दुनिया भर में नई नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज के साथ। तो वो माशाल्लाह बड़ा उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट का कैंपस ले गया गिलगित में। फिर हमने वहाँ एक आईआईटी मद्रास के मॉडल पे एक कोर्स डिजाइन किया, एआई, ब्लॉकचेन और डाटा साइंस का, और उसमें हमने इसकी नेशनल बिडिंग कराई। नस्ट ने वो बिड विन की, और पहला बैच उसका तकरीबन 450 से 500 बच्चों का गिलगित और स्कर्दू से ग्रेजुएट कर गया, ताकि वो बच्चे हाई एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सके। तो इस तरह की बहुत सारी गिलगित में इंटरवेंशन की। देन आई केम बैक टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में आते ही हमने मिसिंग स्कूल फैसिलिटीज प्रोजेक्ट्स को पिकअप किया, और आपने एक स्कूल की बात नहीं की, बात की है कि एक स्कूल को मॉडर्न स्कूल बनाया। सिर्फ एक को नहीं बनाया, 100, 100। आप एक का मैं तस्वीर शायद आपने देखी, बनाया 100 को है। तो अगले 1 अगस्त तक 100 ऐसे स्कूल होंगे। मेरी आपको गुजारिश है, आप आके विजिट करें, जिसमें स्मार्ट स्कूल्स की भी प्रोविजन होगी, जिसमें हेल्थ इंफर्मरी भी होगी, जिसमें अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और एचआर भी थर्ड पार्टी के जरिए डिप्लॉय होगी, जिसमें चेस एंड स्क्रैबल एंड रूबिक क्यूब्स का पूरा सिस्टम इन प्लेस होगा, ताकि बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो दे विल बी रेडी। प्लस हमने कोडिंग फेलोज और एआई और चेस फेलोज को हायर कर रहे हैं, जो अगले 4 हफ्ते में हायर हो जाएंगे। तकरीबन 200 स्कूलों में प्लेस होंगे, ग्रेड 1 to 5 में बेसिक कोडिंग और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई, जिसको आप बात कर रहे थे कि एआई को इस तरह यूज करें कि नेक्स्ट करिकुलम को वो एक्सेस करने और यूज करने के वो आदी हो सके, ताकि ग्रेड 1 to 5 में हमको। फिर 100% प्राइमरी स्कूल में हमने स्कूल मील्स ला रहे हैं, 100 स्कूलों में हो चुका है, और बाई सितंबर तकरीबन जितने 100% गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में हॉट मील बच्चों को फ्री मिलेगा, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्टंटिंग एंड मैल न्यूट्रिशन। फिर हर बच्चे को एक ट्रैक सूट दे रहे हैं, ताकि वो फिजिकल एक्टिविटीज में उसको बुला के हफ्ते में 1 और 2 दिन
यूज करें. We are going to have a national maths olympiad. We are going to have a STEM olympiad अक्टूबर में. फिर पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने पूरे इस्लामाबाद में समर फिएस्टा समर कैंप्स किए हैं. 50 different thematic areas, from tech boot camps to chess to mind games to yoga to architecture, calligraphy, you name anything. पूरे बच्चे यहाँ इंगेज रहे. फिर हमने पूरा जुलाई का महीना बच्चों के लिए एडवांस कोचिंग क्लासेस. ऑल द बेस्ट टीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर वर asked to teach classes for students who need remedial support. तो वो उनको मैंने एडिशनल ऑनरेरियम दिया है. वो अब टीचर्स इस वक्त बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस वक्त पढ़ा रहे हैं. आजकल वो क्लासेस हो रही हैं. फिर every school by end of this month or by mid will have a high-tech telescope with a team to train them to look upwards, not to go downward. They will have. Then we have already established 250 smart schools in Islamabad, and by end of this year, every school of Islamabad will be a smart school. फिर हम 175 एडिशनल टेक फेलोज हायर कर रहे हैं जिनको हम ट्रेन करेंगे इन स्टेम, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंप्यूटर. वो भी हम 250 स्कूलों में इनको प्लेस करेंगे फ्रॉम ग्रेड 6 to 10. कोडिंग और एआई फेलोज आर फॉर प्राइमरी स्कूल और ये है फॉर मिडिल एंड हाई स्कूल. एंड वो जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसके लिए जो प्री मॉन्टेसोरी है उसके लिए 200 टीचर्स को हम हायर कर रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप आए इस्लामाबाद में देखें. इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर इवन प्राइवेट सेक्टर का भी नहीं है जो हमने 100 स्कूलों में किया है इंशाल्लाह. फिर हम 100 जो रूरल एरिया के स्कूल हैं उनको इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में सोलराइज कर देंगे, सो दैट वहाँ जो बिजली की वजह से ना होने की वजह से उनको मसाइल होते हैं वो मसाइल ना हो. क्योंकि रूरल एरिया में बार देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगी. फिर जो रूरल एरिया की आईसीटी की जो बच्चियां थी वो अर्बन एरिया के स्कूलों में नहीं आ पा रही थी क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो ट्रेवलिंग बहुत ऊपर हो गई थी. पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. तो हमने 20 डेडिकेटेड बसेस तैयार कर ली हैं जो 6 o'clock in the morning से 9 and 1 to 3 स्कूलों के घरों के दरमियान. तो अगेन इट्स एन इंसेंटिव फॉर देम टू डू समथिंग. फिर मैंने असातिज़ा को कहा इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस. इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस ये है कि प्राइमरी, हाई और मिडिल और इंटर के टॉप 5 स्कूलों के हर उस्ताद को एडिशनल सैलरी मिलेगी बेस्ड ऑन सर्टेन केपीआई ऑफ आउटकम्स, डिसिप्लिन, अदर थिंग्स, रिजल्ट्स. हर चीज का हमने मिला के दिया है so that it will be incentive for performance. नई टीचर्स की रिक्रूटमेंट की है, अब फाइनल होने वाली है. 45,000 टीचर्स का हमने एग्जाम एआई बेस्ड लिया है, एक भी कंप्लेंट नहीं आई. so that it's again a step towards transparency. so lot of things are happening. हमने कहा आपको कुछ जो याद आती है मैंने वो आपको बताएंगे. अच्छा, सुन के लग रहा है कि मैं सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन ऑफ सिंगापुर से बात कर रहा हूँ, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. कि ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके टोटल 423 स्कूल हैं उसमें से आपने 100 ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं. और तो मैं एक दो सिनिकल सवाल आ रहे हैं कि एक तो इतने पैसे कहाँ से आ गए, दूसरा ये 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ, अब किस खुशी में हो रहा है, और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये अब हो गया कि एक आदमी आता है और वो सारा ट्रांसफॉर्म कर लेता है, बाकी आके कहते हैं पैसे कोई नहीं है भाईजान कैसे करें. आई वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, हुआ क्या है यहाँ पे. अच्छा, एक तो सर पैसों का पाकिस्तान में कभी इशू नहीं होता, सिर्फ तरजीहात का मसला होता है. तो जब मैं आया मैंने एग्जिस्टिंग स्पेस देखी तो मैंने इनसे पता किया मिनिस्ट्री में तो सेविंग्स मौजूद, और दूसरे जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनकी भी मैंने तरजीहात को ठीक किया. मिसाल के तौर पे मिसिंग फैसिलिटीज का प्रोजेक्ट होता था, एक पूरी नए स्कूल की दीवार नई गिरा के दोबारा बनाते थे. मैंने उस चीज से रोका, उसको मैंने इन्वर्ट किया कि आप फर्नीचर, वॉश फैसिलिटीज, लाइटिंग, इन चीजों पर तवज्जो दें ताकि बच्चों की वो जो है ना वो जो लिविंग कंडीशंस बेहतर हो. वो दीवार जो है जैसी है गुजारा है 20 साल, वो 200 साल पुरानी दीवार तो नहीं है ना, चलते चलेगी. तो वो पैसे की सेविंग वहां से हुई. प्लस मुझे स्पॉन्सर्स मिले, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट. आपकी क्रेडिबिलिटी हो तो आपको बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है. तो मुझे समझे कि जितना मैंने खर्च किया उसमें से 15-20% मुझे सपोर्ट मिली है डोनर कम्युनिटी से, दोस्तों से, बिजनेसमैन से. किसी ने 2 स्कूलों में सपोर्ट कर दी, किसी ने 1 में कर दी. ये जो गूगल वाली आप मुझसे बात पहले कर रहे थे, जो गूगल वालों को भी मैंने 2 साल से एंगेज किया हुआ था, तो उन्होंने ये एज ए गिफ्ट 2 रेफरेंस स्कूल बना के दिए. उन्होंने कहा जी आपकी इतनी कमिटमेंट है, वी वांट टू शो आवर कमिटमेंट कि गूगल फॉर एजुकेशन की तरफ से तो 2 रेफरेंस स्कूल बनाए हैं. उसमें बेसिकली वो बच्चों को उन्होंने 2 लैब्स स्टैब्लिश करके दिए जिसमें उन्होंने उनको गिफ्ट किए क्रोम बुक्स
प्लस टीचर्स को ट्रेन किया, मास्टर ट्रेनर, हाउ टू यूज गूगल टूल्स इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट, लेसन प्लान्स कैसे लेने हैं, एक्सेस कैसे करना है, बच्चों को ट्रेन किया है, तो वो क्लासेस में बाय रोटेशन वो यूज होता रहेगा। अब दूसरी बात है, हमने गूगल वालों को और काबू किया, हमने कहा कि आप ये जो क्रोम बुक्स है, इट्स अ बजट लैपटॉप, तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते, तो हम उनको लेकर आए यहाँ पर, उनका नेशनल एनआरटीसी हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ एग्रीमेंट करा दी है। अब वो पाकिस्तान में उसको असेंबल करेंगे और 70% मैन्युफैक्चरिंग की जो रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान से अवेलेबल होगा। इंशाल्लाह उनका प्लान ये है कि अगले 4-6 महीने में यहाँ 500,000 ये बजट लैपटॉप्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो सर ये 50,000 60,000 का विद लाइसेंस हमें मिलेगा। वैसे आप मार्केट में लैपटॉप लेने जाएं 1.5 लाख 2 लाख, ये जो क्रोम बुक्स हैं इसके अंदर इतने टूल्स अवेलेबल हैं कि मैट्रिक तक के बच्चे का गुजारा हो सकता है। हाई एंड नहीं है इसकी, क्योंकि इसमें वो कई जगह कॉस्ट कटिंग करते हैं, लेकिन हमें तो बेसिकली उसी का फायदा है, क्योंकि अफ्रीका में ये बड़ा पॉपुलर है, साउथ ईस्ट एशिया में बड़ा पॉपुलर है, तो वी शुड गो। दूसरी बात है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो फायदा एजुकेशन का हो रहा है। दूसरी बात, आखिरी बात जो आपने कहा था 10 साल पहले, बात सर आगे की तरफ सोचें, पीछे हो गया हो गया, आगे की तरफ देखा करें। हमने भी तो सर वो बात, ये somebody has to start from somewhere। दूसरी आखिरी बात ये कि वी हैव टू मेक अ कोलिशन ऑफ विलिंग। मुझे सपोर्ट सिविल सर्विस से भी मिली है, प्राइवेट सेक्टर से भी मिली है, पुलिस से भी मिली है, जुडिशरी से भी मिली है, पॉलिटिकल लोगों से भी मिली है। ये एक बंदे का काम नहीं है, ये एक पूरा, मेरे पास यंग सिविल सर्वेंट्स की अच्छी टीम रही है जो आइडियाज लेके आती थी। मैं आइडियाज अपने बच्चों से भी लेता हूँ, दे आर जेन जी एंड ये जो मिलेनियल्स हैं, दे आर फुल ऑफ आइडिया। दूसरी बात है सर, दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं। आपने सिंगापुर की बात की, मैं सिंगापुर को भी फॉलो करता हूँ, मैं इंडिया को भी फॉलो, केजरीवाल को मैंने बड़ा फॉलो किया है, आईआईटीज को फॉलो किया है, फिनिश स्कूल, ये जो स्कूलों को कलरफुल और खूबसूरत बनाना है, ये मैंने फिनलैंड से सीखा है। दे मेड इट सो ब्यूटीफुल, सो कलरफुल। अभी आप हमारे साथ बच्चों के साथ स्कूल में हैं, दे डोंट वांट टू गो होम, क्योंकि 90% सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। ये गरीब बच्चे वो हैं जिनका एक एक 1.5 कमरों का घर है, वो एक तंग जगह में रहते हैं। जब जब वो सुबह स्कूल आते हैं, स्कूल को देखते हैं रंग बिरंगा, स्कूल को देखते हैं पेंटिंग, स्कूल को देखते हैं स्पोर्ट्स अरेना, स्कूल में देखते हैं अच्छा खाना मिल रहा है, स्कूल में देखते हैं कि अच्छी एक एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, व्हाई शुड दे गो बैक? तो वी हैव मेड अ होमली एनवायरनमेंट इन दिस स्कूल। कई जगह आप देखेंगे, मैं आपको भेजूंगा पिक्चर्स और वीडियोस, और आप जब इस्लामाबाद आए, टेक यू अराउंड एटलीस्ट इन 100 स्कूल। ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी लैब्स बन गई हैं सर 75 स्कूल में, कि सर आपके प्राइवेट सेक्टर के, आपके पब्लिक सेक्टर की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। बात यह है कि सर पैसे को दयानतदारी से खर्च करें, क्वालिटी पे खर्च करें, और फैसला साजी से डरे ना, और नई चीजों को इनोवेट करने में डरे मत, क्योंकि सर जो बंदा काम करता है वो गलती भी करता है। तो काम करेंगे तो गलत, जो काम ही नहीं करता, जो स्टेटस, सर मैं कोई काम भी ना करूं तनख्वाह मुझे पूरी मिले, तो ये कि काम करें तो अल्लाह ताला को लेगेसी भी बना देगा, आपको दुआ मिलेगी। ये में हाउ कैन अदर प्रोविंशियल सेक्रेटरीज कॉपी दिस मॉडल, और वहाँ पे 5 10 20 50 100 जितने भी आप समझ रहे हैं कि आप कह रहे हैं पैसे नहीं। कल मैं देख रहा था एजुकेशन मिनिस्टर ने फोटो शेयर करी, उसमें वही था कि जी मैंने यहाँ नई दीवार बनवा दी। तो हाउ कैन वी चेंज दिस टू व्हाट यू हैव डन, आपने जो किया है वो लोग कैसे अच्छा सर, मैं एक तो ये कि सर मैं व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट पे, और तमाम प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, पॉलिटिकल लोगों से, सिविल सोसाइटी के साथ राब्ते में रहता हूँ, और डेली मैं अपनी 3-4 एक्टिविटीज उनके साथ शेयर करता हूँ। आज आपको एक गुड न्यूज दूं, स्कूल फॉर मील्स प्रोग्राम के लिए मैं पिछले 2 साल से पिट रहा था। जीबी में स्टार्ट किया, इस्लामाबाद में स्टार्ट किया, बलोचिस्तान में सर 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, आज केपी ने भी अनाउंस कर दिया। तो सर आपको एजुकेशन को एज ए मूवमेंट लेके चलना है, और आपको लोगों को खुद रीच आउट करना है। और मैं रीच आउट कर रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर फॉर पंजाब जो वो आए, उन्होंने हमारे गूगल रेफरेंस स्कूल विजिट्स किए। एक हमारा नियत इदारा है टेक्नोलॉजी लेड टीचर ट्रेनिंग, उसको उन्होंने विजिट किया, उसका मॉडल जो कि टीचर्स को लेसन प्लान बना के देता है उनके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे। तो टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। वो जो आप बात कर रहे थे कि अब हमें हर चीज को एआई के हिसाब से तैयार करना है, तो हम डेली, आई हैव अ यंग टीम, कुछ कंसल्टेंट्स भी हैं जो पहले से काम कर रहे थे, मैंने उनको रीच आउट किया, कुछ आप जैसे दोस्तों से मदद ली। तो वी आर लर्निंग एवरी डे एंड वी आर क्रिएटिंग न्यू एक्टिविटीज, अल्लाह ताला का करम। बहुत ही ज़बरदस्त। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, मैं तो कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं जब सिंगापुर के सेक्रेटरी के साथ लगा हूँ तो वो ऐसी एडवांस है, तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ बताने की। सर इट विल uh, टेक टाइम सर, इसके इम्पैक्ट आने में सर सालों साल लगेंगे। ये 70 साल का है, बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता इम्बेड कर रहे हैं, इट्स इंक्रीमेंटल रिजल्ट्स आते हैं। एफर्ट्स रेवोल्यूशनरी है,
रिजल्ट्स इंक्रीमेंटल होंगे, क्योंकि एक दिन में आप बच्चों का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको देखा है, जब मैं ओएसडी था, मैंने एक स्कूल को दोस्तों के साथ मिलकर, कोसार मार्केट है बड़ा पॉपुलर, उसके साथ हमने रीबिल्ड किया। अच्छा, जब पहले कुछ हफ्ते थे ना, उनमें मैंने जब पता किया तो बच्चे आपस में बड़ी बदतमीजी, बदतहजीबी, तोड़ फोड़ और गालियों पे आते थे। 6 महीने बाद अब देखिए बच्चे ऐसे सॉफ्ट हो गए हैं, अपनी चीजों को संभाल कर रहे हैं। आपको इस्लामाबाद का इंशाल्लाह 6 महीने के बाद जिन स्कूलों को हमने ठीक किया है ना, कोई दीवार पे स्क्रैच भी नजर नहीं आएगा, कोई ग्राफिटी भी नजर नहीं आएगी। क्लीनलीनेस की ड्राइव चलाई। अच्छा हाँ, एक और चीज, तमाम स्कूलों में इंशाल्लाह अगले 1 महीने तक हम वॉश स्टेशन लगा रहे हैं, ताकि एंट्रेंस के वक्त बच्चे हाथ धोएं। तो तमाम 200 में लग गए, 200 और में लग जाएंगे, तो वॉश स्टेशन लग रहे हैं। फिर उनको स्पोर्ट्स किट्स दे रहे हैं। फिर हाँ सर, 20-25 कॉलेजेस में मैंने आउटडोर जिम जिम बनाए, ताकि बच्चे जरा को फिजिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लें। इस तरह का सर रोज एक ख्वाब देखते हैं, अगले दिन शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन एक ख्वाब देखते हैं, फिर तीसरे दिन शुरू हो जाते हैं। सर काम करने वाला बंदा और रिसोर्सेज आ जाते हैं। As I said, I'm out of words. You're doing fantastic work already. लास्ट जाने से पहले आरिफ अभी प्रेसिडेंट साहब ने एक स्पीच दिया था कि यार 27 मिलियन बच्चे जो है ना वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और अगर हम इसी तरह से स्कूल बनाते रहेंगे तो 5 लाख स्कूल चाहिए। वी हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो इस वक्त क्रोमबुक जो आपने फरमाया कि 60,000 का नया मिलता है, यूर राइट। और इस वक्त वही क्रोमबुक पुराना जो है वो मिल जाता है साढ़े चार दस हजार हजार का है, साढ़े चार नौ हजार हजार का भी मैंने लिया। 4,500 हाँ, का भी हो गया। एंड वही एग्जैक्ट लैपटॉप 2,800 रुपए का दुबई में अवेलेबल है, अगर हम वहां से किसी तरह से इजाजत गवर्नमेंट दे दे कि ये वो आ जाए, क्योंकि अभी स्मगल होके आ रहे हैं। उसका जो प्रॉब्लम है वो ये कि अलाउड नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें लुक इन करके ना इसको लीगल करा लें जाके। हमारे जो बच्चे हैं वो चाहे कहीं से भी शुरू करें, वो 2,800 5,000 में उनको हाथ में कंप्यूटर मैं आए तो फुल भी इस रेंज सर मैं आपको कमेंट कर दूं कि जो मुझे प्राइवेट सेक्टर की डोनेशन आ रही है, उनको मैं यही कहता हूं कि 8,000 और 5,000 वाला मुझे लेकर दें, तो वहां से मुझे सैकड़ों के हिसाब से, मैं भी आपको बताऊंगा नहीं, एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा इदारा है, उसमें कोई जानने वाला था, उसने कहा जी हम अमूमन हम 1-2 साल बाद अपना टॉप लेवल आईटी इक्विपमेंट ऑक्शन कर देते हैं, लेकिन आपको हम गिफ्ट कर रहे हैं ताकि आप स्कूलों में दें। तो वो सर 20-25 करोड़ का मुझे इक्विपमेंट दे रहे हैं, जो मैं इंशाल्लाह स्कूलों में डिप्लॉय करूंगा। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेके, लैपटॉप से लेकर, डेस्कटॉप से लेके, तो अल्लाह ताला आपको वहां वहां से मदद दिलवाता है, आपकी सोच है सर। तो पीपल हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है। मैं उसका एक राइटअप मैंने उमर को भेजा था, उमर सैफ को, जब वो मिनिस्टर थे। मैं आपको दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा कि अगर आप पुरानों को लीगलाइज करा देना, क्योंकि हम क्यों खामखाए में इलीगल रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि अभी वो स्मगल होके आते हैं। एंड देन मोर एंड मोर पीपल विल अंडरस्टैंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो आज की टॉक है उससे भी बहुत लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि क्रोम बुक्स आर फाइन फॉर स्टूडेंट्स, और वो एक एंट्री पॉइंट कंप्यूटर है, जाके बच्चे जो हैं हाथ में कंप्यूटर लेने से। आज मैं यहाँ सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि मेरे सामने मुझे 12 साल की उम्र में अब्बा जी ने कंप्यूटर दिला दिया था, और मेरे साथ जो दूसरे लोग थे वो थोड़ा से पीछे रह गए, सिर्फ इसलिए कि गलत टाइम पे उनको कंप्यूटर मिला। तो मुझे ख्वाहिश है मेरी कि हम लोगों ने बिजली के रेवोल्यूशन से फायदा नहीं उठाया, इंडस्ट्रियल वाले से फायदा नहीं उठाया, कंप्यूटर वाले से फायदा नहीं उठाया, इंटरनेट वाले से भी फायदा नहीं उठाया, अब एक मोबाइल वाला है उससे भी फायदा नहीं उठाया। वो तो कोरोना की बदौलत हमारे फोन 20 मिलियन से बढ़ के 150 मिलियन हो गए। अगर वो नहीं होता तो शायद वो नहीं होता। मैं तो हजरत करूणा अलैहिस्सलाम उनको बार बार इसीलिए करता हूँ, क्योंकि मेहरबानी कि हम आईटी में आगे आ गए। अब ये एआई का जो दौर है, मेरी ख्वाहिश है बहुत कि ये बच्चों के हाथ में पहुंच जाए और ये इससे भरपूर फायदा उठाएं, और ऐसा ना हो कि हम इससे भी पीछे रह जाएं। और मैं उसमें आपसे मदद का भी दरख्वास्तगार हूँगा, और इंशाल्लाह। आप जहाँ भी इसको इस्तेमाल कर सकें वो भी दरख्वास्तगार हूँगा। एक चीज जो इंशाल्लाह। हमने छोटी सी इंटरवेंशन और की है अपने स्कूलों में, वो हमने टारगेट ये बनाया है कि 5th ग्रेड में हम बच्चे को कंप्यूटर savvy इतना करते हैं, इंटरनेट savvy इतना करते हैं कि वो 6th ग्रेड में जाके $100 अ मंथ कमाना शुरू कर दे। और उस $100 अ मंथ में से 50% वो स्कूल को दे दे, यानी 15,000, तकरीबन 14,000 रुपये महीना, और 14,000 रुपये घर ले जाए। एंड देन 7th ग्रेड $300 पे आ जाए, और 8th ग्रेड में $500 पे आ जाए, सेम 50-50 के ऊपर। अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल गोइंग ऑन राइट नाउ। उसका फायदा ये होगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो या जैसे आप बता रहे थे कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन उनको 2,000 रुपये देती है या 800 रुपये कहीं पे देती है, उसकी जगह स्कूलों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से
وہ اسکول زیادہ کوانٹٹی میں بنا سکیں گے، اور جو 27 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو بھی چیلنج ختم ہو جائے گا، پلس جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں اس سے جو بچہ ہے وہ گلوبل ریڈی ہو جائے گا رادر دین جسٹ لوکل ریڈی ہونے کے۔ تو یہ ایک چیز اور ہے جو میں آپ کو ہم نے جو انٹرفینشن کیا ہے اس کے اندر، اور کوئی خاص ہم نے چیز نہیں کی ہے۔ آئی تھنک آپ ہمیں ویسے ہی سپرسیڈ کر گئے ہیں، اتنے اچھے خوبصورت اسکول بنا کے، ہمارا تو چھوٹا سا چوزا جیسا اسکول ہے، آپ لوگوں کے تو نہیں دو سر، دو آپ کا چوڑے امپیکٹ کر بہت کے ہے، اسکول ہوتے ہیں۔ آپ کا نا امپیکٹ بہت ہے۔ ہم تو سر سرکار میں بیٹھے ہیں، لیکن میں حقیقت بتاؤں، اوریجنل کام اسٹیٹ کا ہے۔ اسٹیٹ کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی، صرف اسٹیٹ۔ لیکن آج آپ نے نیوز آئٹم دیکھا ہوگا سر، اس سال ہمارا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے، پچھلے سال 1.5% آف دا جی ڈی پی تھا، اس سال 1.9 ہے۔ اس کا مطلب ہے انہانسمنٹ ہوئی ہے۔ دا اونلی تھنگ از وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان اے ریزنیبل وے، ان این ایفیشینٹ وے، ان اے ٹرانسپیرنٹ وے، مور الائنڈ ود دا ماڈرن ٹیکنالوجی نیڈز آف دا کنٹری۔ اصل بات یہ ہے کہ دیانتداری سے خرچ کریں اور ڈائریکشن ٹھیک رکھیں، اور اس میں تھوڑی سوفسٹیکیشن لائیں۔ پاکستان کا سر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، بہت بہت شکریہ محی الدین بھائی۔ اب آئی ایم مور کیوریس ٹو کم۔ ہم نے ایک جی پی ٹی کریٹ کیا ہے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر، اس کال سارا باجی، وہ چیٹ جی پی ٹی کو پورا اردو میں کنورٹ کر دیتا ہے، باتیں بھی اردو میں کرتا ہے۔ پھر ہم نے سرائکی، پنجابی، پشتو، سندھی میں بھی بنا دی ہے کہ وہ پھر ادھر ادھر نہیں جاتی، وہ نیشنل لینگویج کے اندر ہی رہتی ہے اور انگلش بھی بولتی ہے، لیکن پرائمری لینگویج اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ آپ نے اپنی پرائمری لینگویج سے باہر نہیں جانا ہے، کوشش یہ کرنی کہ اسی میں رہیں، اور اس میں سارا کوریکولم ان بلٹ ہے ہمارے ملک کا، اینڈ اٹس فری ایپ۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی ٹرائی کریں اور اپنے اسکولوں میں امپلیمنٹ ٹھیک۔ کروائیں۔ اینڈ ایک اور ایپ ہے کال اینی کے نام سے، وہ ہماری نہیں ہے، اینڈ اٹس آلسو، وہ انگلش میں ہر زبان سمجھتی ہے لیکن انگلش میں جواب دیتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی انگریزی بہت تیز ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہی گپے لگا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈفرینٹ انہوں نے ایواتارز دیے ہوئے ہیں، شکلیں دی ہوئے ہیں کہ لوگ اس سے سیکھ سکتے ہیں، تو انگلش کا جو چیلنج ہے وہ اس سے بائی پاس ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگین محی الدین بھائی، تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کے پاس کوئی تھینک یو سر، سوال ہو تھینک یو میرے فار لیے تو انوائٹنگ می حاضر ہوں۔ سر، بٹ وی شوڈ ورک ٹوگیدر سر، دیٹس لائف از آل اباؤٹ کولیبوریشن، کوآپریشن سر۔ میں نے کہا نا، دیر از ایکسیس آف ایول ایوری ویئر، جی، وی ہیو ٹو میک این ایکسیس آف اینجلس۔ بس میری دعا ہے یہاں پہ کہ اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں لیکن وہ پبلکلی سامنے نہیں آتے، جیسے آپ نے کہا کہ میرا امپیکٹ زیادہ ہے آپ کا کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایکچولی تو آپ اتھارٹی ہیں، آپ کے پاس پاور بھی ہے اور اسپیسز بھی ہیں۔ میں تو اپنے پیسوں سے جو جمع پونجی ہے اس سے کام کرتا ہوں، میں ڈونیشن بھی نہیں لیتا ہوں لوگوں سے اس کام کرنے کی۔ سو میری خواہش ہے کہ آپ کو جو باقی سیکرٹریز ہیں، منسٹرز ہیں، وہ فالو کریں، اور آپ ہر 3 مہینے بعد ایک کانفرنس کر لیا کریں، 50-60 لوگوں کی، 100 لوگوں کی، جو جو آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ آئیں اور اپنے خرچے پہ آ کے یا دوسروں کے خرچے پہ آ کے، آئی ڈونٹ کیئر، آ کے ایک دوسرے سے ڈسکشن کر لیں، کیونکہ آپ کی باتیں اور ہماری باتیں دیر سے سمجھ آتی ہیں، اینڈ تھنگس ٹیک ٹائم انڈرسٹینڈنگ۔ ہر ایک کی آپ کی طرح انہوں نے ہوم ورک اور بیک گراؤنڈ نہیں کیا ہوتا، بلکہ انفیکٹ میں آپ سے پوچھنے والا تھا، یہ جو ساری آپ نے لسٹ شروع میں ڈیفائن کر دی جس کی وجہ سے آپ کی جنت پکی ہے، وہ امی کی دعا تھی یا آپ کی خود کوششیں تھیں یا کسی نے دعا دی تھی آپ کو کہ میں ہر یہ ڈپارٹمنٹ میں والدہ آپ کی ہوں گے؟ دعا تھی، والدہ کی دعا تھی۔ والد نے جو بچپن میں خواب دکھائے تھے نا سر، یو کی ناٹ اچیو گریٹنس انٹل یو ہیون ڈریمٹ آف اٹ، یو ہیو ٹو ڈریم فرسٹ۔ آپ دیکھیں گے تو بات بنے گی نا سر۔ جو ہم سے چیز مس ہو گئی، اب مجھے نئی جنریشن وہ چیزیں بتاتی ہے، اور بات یہ ہے کہ سر نہ یہ نوکری رہنی ہے نہ زندگی رہنی ہے، تو جتنی لیگیسی ہے، جتنا وقت ہے، اس کو ایفیشینٹلی، امیڈیٹلی، اے ایس اے پی یوٹیلائز کرو۔ باقی تو سر یہ کرسی بھی نہیں رہے گی، نہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محی الدین بھائی۔ میرے لیے کوئی سوال؟ بس سر، آئی کیپ ان ٹچ ود یو، میں آپ کو فالو کرتا رہتا ہوں، آپ سے آپ کو سوال پوچھتا رہتا ہوں۔ بٹ سر، اسلام آباد جلدی آئے، وی شوڈ میٹ۔ جزاک اللہ، جب تھینک میں یو سو کراچی مچ۔ آیا تو میں ہوں گا انشاءاللہ۔ جی ضرور، تھینک یو انشاءاللہ، سو مچ، السلام علیکم۔ تھینک یو۔ تو ایوری ون، یہ ہمارے ساتھ آج سیکرٹری ایجوکیشن پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کے تھے، اور محی الدین بھائی، میں بہت ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ کائنڈلی ان کو اپنی پوڈ کاسٹ پہ دعوت دیں، اپنے ٹی وی پہ دعوت دیں، ان کا چرچا کریں۔ چرچا اس لیے نہیں کریں کہ یہ کوئی بہت آپ نے ان سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، بلکہ چرچا اس لیے کرنا ہے آپ نے ان کا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے اور بہت مثالی ہے، اور یہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایسے اسکولس پاکستان میں بن گئے ہیں، تو باقی جو ہمارے سٹیزنز ہیں، ملک کے لوگ ہیں، وہ بھی شور کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ یار یہ
हमारे गांव में, हमारे इलाके में भी होना चाहिए। रेहान अल्लाह वाला अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है, हम सब मिल के सब कुछ कर सकते हैं अगर हम मिल के काम करें। तो मेरी तमाम पॉडकास्टर से रिक्वेस्ट है कि मोहिद्दीन भाई के साथ लंबी पॉडकास्ट करें, और टीवी वालों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इनके जो इन्होंने काम किया है वो इनक्रेडिबल काम है। सदियों में ऐसा काम होता है, तो इससे ज़रूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए, और उनकी जहाँ तक मदद हो सके वो करनी चाहिए। रिमेंबर कि वो एक इंसान है, हर वक्त हर एक का जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह आज मुझे टाइम दिया वो आपको भी दे देंगे, मेरे को जानने वाले नहीं है। आज मेरी पहली दफ़ा उनसे बात हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिद्दीन भाई, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।